major opening. So this is the vena cava opening for the inferior vena cava. This is the ossiphageal opening for the esophagus, and this is the aortic opening for the descending thoracic aorta. जैसे descending thoracic aorta ये diaphragm से cross करती है. This is the diaphragm. Okay, so this is the diaphragm. Diaphragm से cross करके कहाँ जाती है यहाँ पे abdomen में. So in the abdomen, this is the continuation of the thoracic aorta continue as a abdominal aorta. So this is the abdominal aorta. Off to the L4 lumbar vertebra. जो एब्डोमिनल एओर्टा है वो दो में टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे. राइट एंड लेफ्ट टर्मिनल ब्रांच, दैट इज अ कॉमन इलियक ब्रांच. दिस इज द कॉमन इलियक ब्रांच. ठीक है ना. दिस इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द L1 या T12. सो दिस इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द T12 टू द L4. सो दिस पार्ट इज नोन एज अ एब्डोमिनल एओर्टा. सो दिस एब्डोमिनल एओर्टा गिव अ 3 major branch, that's the 3 anterior branch, 2 lateral branch, and the small branches are the aortic branches. Okay, so the major branch, that is the celiac trunk. Okay, so this is the celiac trunk, and celiac trunk give 3 branches. So this is the celiac trunk, it give 3 branches. One for the spleen, that is the splenic artery. The thick is the splenic artery, and is the left gastric artery for the lesser curvature of stomach. So this is the left gastric artery, this is the celiac artery, and this is the common hepatic artery. So this is the common hepatic artery. Common hepatic artery gives us the gastroduodenal artery. This is the gastroduodenal artery and continue as a proper hepatic artery and give another branch, that is the right gastric artery. So this is the right gastric artery. So this is the celiac trunk. Celiac trunk, first branch is the left gastric branch. This is the celiac branch. Yeah, consider splenic branch. This is the common hepatic branch. Common hepatic give a 3 branch, that is the gastroduodenal branch and the right gastric branch, and this is going to the duodenum, liver. This is the hepatic branch. This is the hepatic branch of the celiac trunk. So this is the celiac trunk. 1.25 cm below to the celiac trunk there is another artery. Origin of the another artery is the superior mesenteric artery. ये artery अपना कौन सा है? superior mesenteric artery. superior mesenteric artery right side में 4 branches देती है. एक posteriorly एक branch देती है. एक कहाँ देती है? यहाँ पे inferior pancreaticoduodenal artery इसमें कट चुका है. आप इसमें देख सकते हो, आप इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो, यहाँ पे ओपनिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे. सो दिस इज ओपनिंग फॉर द इंफीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी, जो यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड पेनक्रियाज के लोअर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियाज को सप्लाई करती है. कौन सी? इंफीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी. द सेकेंड ब्रांच इज दैट इज द मिडिल कोलिक आर्टरी. सो दिस इज द कोलोन. ओके, द असेंडिंग कोलोन एंड दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन. ओके, यहाँ पे सो दिस आर्टरी is a middle colic artery. Okay, so this artery is a middle colic artery which is branched from the superior, the second branch from the superior mesenteric artery. So this is the middle colic artery, give a 2 division, left and right division. Okay, so left division is anastomosed with the right branch of left colic artery which is branch from the inferior mesenteric artery. Okay, so इस साइड से जो राइट ब्रांचेज है वो किससे शुरू करेगी? यहाँ पे राइट कोलिक आर्टरी की ब्रांचेस. सो दिस इज द राइट कोलिक आर्टरी. ये टूट गया थोड़ा यहाँ पे. ये कौन सी है? राइट कोलिक आर्टरी. फिर हम देखोगे यहाँ पे असेंडिंग ब्रांच एंड द डिसेंडिंग ब्रांच. इसमें भी कौन सी है? असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच. जो असेंडिंग ब्रांच किससे कर रही है? मिडिल कोलिक आर्टरी के डिसेंडिंग ब्रांच से एनास्टोमोस कर रही है. जब इसकी डिसेंडिंग ब्रांच किससे एनास्टोमोस करेगी? इलियोकोलिक ब्रांच. सो दिस इज द इलियोकोलिक ब्रांच. दिस इज द 4th ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी था इलियोकोलिक ब्रांच. इलियोकोलिक ब्रांच फिर देखिए असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच. असेंडिंग ब्रांच फिर एक कौन सी? राइट कोलिक आर्टरी के डिसेंडिंग ब्रांच से एनास्टोमोस करेगी. जबकि इसकी डिसेंडिंग ब्रांच जो टर्मिनल ब्रांच ऑफ यहाँ कट गया है, जो टर्मिनल ब्रांच, so this is टर्मिनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, उसकी से क्या करेगी? अनास्टोमोस करेगी. ऑल्सो ये जो आर्टरी है कौन सी? इलियोकोलिक ब्रांच, वो सप्लाई करती है सीकम को भी, सीकल ब्रांच भी देती है एंटीरियर पोस्टीरियर.
अपेंडिक्स को भी सप्लाई करती है, तो अपेंडिकुलर ब्रांच भी देती है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जा रही है, यहाँ पे ये कौन सी है, सीकम, ठीक है ना, तो सीकम को भी दे रही है यहाँ पे। पीछे कौन सी है, अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स को भी सप्लाई करती है, सो दिस इज द अपेंडिक्स। यहाँ पे नहीं, दिस इज द इलियल ब्रांच, ये कौन सी है, इलियम, इलियम को भी सप्लाई करती है क्योंकि इलियल ब्रांच। और सो दिस इज द इलियोकोलिक ब्रांच। नीचे जाके 3 ब्रांच देती है जो डिसेंडिंग ब्रांच है, कौन कौन सी यहाँ पे, सीकम के लिए सीकल ब्रांच, अपेंडिक्स के लिए अपेंडिकुलर ब्रांच, एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम के लिए, सो दिस द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम was the ilial branch. So this is the right side, this is the branches from the superior mesenteric artery. Left side आप देखो, there are the more number, there are the jejunal and the ilial branch. So these are the jejunal and the ilial branch of the superior mesenteric artery. Below to the superior mesenteric artery, yeah, on the both sides of superior mesenteric artery, there is another artery, that is the renal artery. So this is the renal artery, both sides. This is the renal artery who supplied blood to the kidney, right and left kidney. So this is the 2 artery, the renal artery. So these are the renal artery from the abdominal aorta. आप नीचे चले कौन सी, यहाँ पे सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के नीचे जाओगे, फिर अनदर लार्ज ब्रांच देखेंगे यहाँ पे कौन सी, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सो दिस इज द इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सबसे पहले कौन सा होता है यहाँ पे, सीलियक ट्रंक, सुपेरियर मेजेंट्रिक, ये कौन सी, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की भी 3 ब्रांच दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द लेफ्ट कोलिक ब्रांच, सो दिस इज द लेफ्ट कोलिक ब्रांच, एंड यहाँ पे उसकी कौन सी है, डिसेंडिंग ब्रांच एंड द असेंडिंग ब्रांच, और तो कहते हैं लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच। कौन सी यहाँ पे, लेफ्ट कोलिक ब्रांच। सेकेंड इज द सिग्मोइडल ब्रांच, सो दिस इज द सिग्मोइड सप्लाइंग द sigmoid colon. This is the sigmoidal branch and this is the rectal branch, the superior rectal branch of the inferior mesenteric artery. तो कौन सा यहाँ पे, inferior mesenteric artery। फिर जाकर देखो, these are the aortic branches जो posterior abdominal wall को सप्लाई कर, यहाँ पे कौन सी, aortic branches, these are the aortic branches। and L4 के लेवल पे जो abdominal aorta है 2 में डिवाइड हो जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे द टर्मिनल ब्रांचेस बोलती है यहाँ पे। राइट साइड में राइट कॉमन इलियक ब्रांच, लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉमन इलियक ब्रांच, एंड द मिडिल ऑफ दिस 2 डिवीजन देयर इज अ मीडियन सैक्रल ब्रांच। तो आगे से दिखेगा नहीं, हम थोड़ा लिफ्ट करते हैं यहाँ पे, दैट इज अ मीडियल सैक्रल ब्रांच। सो दिस इज द मीडियल सैक्रल ब्रांच ऑफ द एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द abdominal aorta. So this is the medial sacral branch of the abdominal aorta. So thank you very much for watching this video.